Okay, good morning children. Hope you all are well. Yesterday we had seen Rutherford's experiment, Rutherford's gold foil experiment. So, on the basis of observation and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom. ये 3 points हमें याद रखने हैं. First point is the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in very small region या extremely small region. याद आया? वहीं पे सिर्फ डिफ्लेक्शन हुआ था. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. He gave the concept of nucleus. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths which are known as orbits. Orbits का भी concept Rutherford ने दे दिया. यानी electrons are not in the nucleus. They are moving around the nucleus in circular path. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system, in which nucleus plays the role of sun और सारे के सारे planets are revolving around the sun. Third one, electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. One is positively charged and one is negatively charged, so they are held together. This was given by Rutherford. Tomorrow I will tell you what were the drawbacks of Rutherford's observations. Now we will go for the next topic, that is atomic number and mass number. बेटा एटम है, दिस इज एटम. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, राइट. एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ये सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज. इतना तक तो हम समझ चुके. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, राइट. Z is equal to number of proton in the nucleus of an atom. Simple definition. जितने protons होंगे उसको Z कहते हैं. अब now we know that in a neutral atom जितने proton होंगे उतने ही electron होते हैं, right? जितने proton होते हैं उतने ही neutron होते हैं in an neutral atom. Neutral मतलब जिसके ऊपर कोई charge ना हो. So we can also write Z is equal to number of proton in nucleus of an atom is equal to number of electrons in a neutral atom. जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट टर्म इज मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर में सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P प्लस N, राइट. सो द एटम, अगर कोई एलिमेंट ले लो, सपोज करो एलिमेंट का सिंबल है X. X सिंबल नहीं है, ये हमने सपोज किया, राइट. तो X इज द एलिमेंट, A इज द mass number and Z is its atomic number. समझ में? Atomic number क्या है? Number of proton. Now let me show you with example. Sodium, right? Sodium, what is Z? Sodium का Z कितना होता है? Atomic number कितना होता है? 11, correct? And mass number इसका है 23. So we will write 23 sodium 11. By this, what information you are getting? Let me tell you. Number of proton 11, number of proton P plus लिख दो, समझ में आ जाएगा. proton is equal to 11. number of electrons नहीं दिए हुए, but I told you इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, so जितने proton उतने इलेक्ट्रॉन. so number of electron is also 11. what about number of neutrons? Neutrons is equal to, इसमें से इसको माइनस कर दो. सो 23 माइनस 11, 12. यानी A माइनस Z will give you the value of neutron. Should I write here? Number of neutron is equal to A minus Z. What is A? A is atomic mass, ठीक है, या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A minus Z. 1 mark question will be asked from this. Second example I will show you. This is O, oxygen. Oxygen atomic number is 8, correct?
and mass number is 16. So what information we are getting? Number of proton is equal to 8. Number of electron, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है मुझे, so number of electron is also 8. Number of neutron is equal to 16 minus 8. 16 minus 8 is equal to 8. So here all the three things are 8. Now suppose करो एक और example लिखती हूँ. Can you see? O 2 minus ऐसा दे रखा है. Right? Now I have to write. So O2 minus, here it will be 8 only. Here it will be 16 only. Correct? ये तो number fix ही है ना, number of proton. And this is also fixed, mass number. So what information we are getting from this? See carefully. Number of proton is equal to 8. Correct? Number of electrons अभी छोड़ देते हैं, right? And number of neutrons, small n चलेगा, n is equal to 16 minus 8. 16 minus 8 is equal to 8. But what about number of electron? Actually it should be 8 only. जितने proton उतने electron. But what I see here 2 minus charge is there. Minus किसका charge होता है? electron का. कितने electron extra आ गए? 2. Right? तो electron होने थे 8. But 8 plus 2 is equal to 10 electrons. Right? कहाँ से आया? Because charge is given. Minus charge is given. That means electrons are extra. How many electrons are extra? 2 electron. 2 charge है तो 2 electron extra. 3 minus है तो 3 electron extra. 1 minus है तो 1 electron extra. So number of proton is 8. Number of electron is 10. And number of neutron is 8. Clear? So this is about atomic number and mass number. Then we will come for new terms are there, that is isobars and isotopes. What are isobars, children? When the when the mass number is same but atomic number is different. ठीक है? That is same number of nucleons. Now you said टीचर न्यूक्लियन तो आपने बताया नहीं. सो न्यूक्लियन मीन्स P plus N. Proton and neutron, they reside together in the nucleus, so they are known as nucleons. Okay? So mass number is same, but atomic number is different. Example, C and N. दोनों के ऊपर 14 लगा है, यानी मास नंबर तो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट है. डू यू सी? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है. एंड एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो अलग अलग एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर सबका अलग ही होगा. So here it is 6, here it is 7, right? So these two are known as isobars. Another example, you see carefully. Argon, potassium, calcium. Argon में 40, mass number is 40, potassium is also 40, calcium is also 40. But they three are different elements, so उनके atomic number अलग अलग होंगे. So here it is 18. Here it is 19, here it is 20. Correct? So mass number is same and atomic number is different. So these three are known as isobars. Right? Let me show you. Circle बना लिया sphere जैसा. Atom हो गया. So atom में this is argon. तो argon में 18 proton, 18 proton. 18 proton है और कोई charge नहीं है, so 18 electron. Right? So, how many neutrons will be there? 40 minus 18, 22 neutrons. Here, potassium, 19 proton, 19 ही electron होंगे. And 40 minus 19, that is 21 neutron. Here, calcium, 20 proton, 20 electron. 40 minus 20, 20 neutron. So these three atomic mass is same, या mass number is same, but atomic number is different. Therefore, these three are known as isobars. Now I will tell you about isotopes. What are isotopes? Here, same atomic number
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर अलग अलग हो जाएंगे। ये हमेशा एक ही एलिमेंट का होगा, ये ध्यान में रखना है। उसमें एलिमेंट अलग अलग थे, इसमें एलिमेंट तो सेम ही होना पड़ेगा। सो हियर आई एम शोइंग यू 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। The first one is known as protium, second one is deuterium, third one is tritium. Protium में दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ये तो सब में सेम ही रहेगा, है ना, बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो हियर इट इज 1, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3। यू नो, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 is equal to 1 neutron, 3 - 1 is equal to 2 neutron. So protium, deuterium and tritium are 3 isotopes of hydrogen. ठीक है, सिंबल में यहाँ HDT लिखा है, आगे तो सेम ही लिखते हैं, इनका स्पेशल सिंबल है, बट दे 3 आर ओनली हाइड्रोजन, दे आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में यही मिलता है, दैट इज अवेलेबल टू अस on the in our atmosphere, that is hydrogen, and 99.985% ये है, 99.985% सराउंड जितने हाइड्रोजन उसमें ये प्रोटियम ही है, बाकी दो तो बहुत ही कम मिलते हैं, राइट। देन कम्स अनदर आइसोटोप इज गिवन, दैट इज कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, राइट। 6, 6 and 6, ये तो सेम ही रहेगा, नंबर इज ऑलवेज सेम इन आइसोटोप्स। हियर कार्बन 12 आइसोटोप, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप एंड कार्बन 14 आइसोटोप। कार्बन 12 याद है, हमने रेफरेंस के लिए लिया था फर्स्ट चैप्टर में। सो दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप में एलिमेंट सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। सो इट इज 12, 13 एंड 14। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 - 6 n इज इक्वल टू 6, 13 - 6 n इज इक्वल टू 7, 14 - 6 n is equal to 8. So 6, 7, 8 is the number of neutron, यानी ये न्यूट्रॉन में वेरी करते हैं। इजी है समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज tomorrow I will tell you about what I said. हाँ सॉरी, रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी एक मजेदार चीज पढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देयर सम प्रॉपर्टीज आर गिवन हियर, सो आई विल शो यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की क्या मीनिंग होती है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। कितनी बार, जैसे तुम क्लास में घुसते हो, फिर टीचर में आई गो टू टॉयलेट, टीचर में आई गो टू टेक वाटर एंड ऑल, सो कितनी बार आप बाहर जाते हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई लड़का कितनी बार या कोई बॉय या गर्ल कितनी बार अपनी प्लेस चेंज करता है, दैट इज हिज और हर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग द प्लेस। ठीक है, या वो तो ऐसे ही मैंने बता दिया। नाउ नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ, इन साइंटिफिक टर्म्स में अगर बात करें तो नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट in 1 second, that is frequency। ठीक है, वो क्लास वाला तो ऐसे ही बताया कि कितनी बार, दैट इज फ्रीक्वेंसी ओनली। बट ये यहाँ पे हम कैसा पढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, राइट। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया, हेनरिक हर्ट्ज थे, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना पास होगा, तो सेकेंड इनवर्स। Second term will be wavelength. It is denoted by Greek letter lambda, right? इसको ऐसे lambda, and this is ऐसा यूनिट will be meter। wavelength होता क्या एक्चुअली, ऐसे देखो, कुछ ऐसा तुमने शायद पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज वेवलेंथ, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट विल बी मीटर, बट इसका छोटा यूनिट भी हम यूज करेंगे क्योंकि ये तो वेवलेंथ, इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है। अब इतने इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट आई विल शो यू द सॉल्व न्यूमेरिकल 2.3 इन द बुक। क्वेश्चन इज द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज दिस एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, तुम रीड करना अपनी बुक में, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। सो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या बताया मैंने तुमको, ये अभी बताया नहीं, सॉरी, ये स्मॉल वी जैसा कुछ दिख रहा है,
इसको बहुत सारे बच्चे वी पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट वी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज न्यू. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? न्यू. दिस इज नॉट वी. वी मतलब तो वेलोसिटी हो जाती है. दिस इज न्यू. ओके. सो फ्रीक्वेंसी सिंबल इज न्यू. न्यू इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज 1368 किलो हर्ट्ज. किलो हर्ट्ज. ओके. एंड दूसरा है कैलकुलेट द वेवलेंथ. कैलकुलेट द वेवलेंथ. वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लेमडा. ठीक है ना. सो दिस इज वेवलेंथ. ये कैलकुलेट करना है हमें. ओके. तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मालूम? सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा. ओके. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमडा मीन्स वेवलेंथ, एंड सी मीन्स लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट. इसकी वैल्यू फिक्स है. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है, एंड इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स. ये फिक्स है वैल्यू बेटा, ये याद ही रखना है आपको. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो आई विल राइट हियर, आपने को फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है. सो आई विल राइट हियर लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. ये न्यू है. ओके. तो सी इज 3 इंटू 10⁸ divided by what is our new? 1368 किलो हर्ट्ज. तो किलो हर्ट्ज को ऐसा यूनिट में हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज. लिख दूं क्या? 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज. ओके. अब इसको तुम डिवाइड कर लोगे तो आंसर विल बी, जब पावर का माइनस करना आ गया सबको, 10⁸ माइनस 3. सो 10⁵ आ जाएगा ऊपर. फिर इसको डिवाइड करोगे 3 को 1368 से. सो इट विल बिकम, आंसर इज गिवन ओनली 219.3 मीटर. आंसर इज 219.3 मीटर. ओके. सो यू विल कैलकुलेट इन दिस मेथड. Let me show you with calculator. So when I divided 3 by 1368, it is giving the value is equal to 0.00219. ठीक है, 2 ऐसा कुछ आया. तो अब पॉइंट को यहाँ करना है. सो इंटू 10⁻8 minus 3 is 5. ठीक है, 10⁵. So what I will do? 1 2 3 2.19 इधर ले आए इंटू 10⁻3 डिजिट्स मूव किया राइट साइड तो माइनस करेंगे. सो 5 minus 3 is 2. राइट. सो दिस इज मीटर. दिस विल बी द आंसर. और बुक में जो ये दे रखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इसको अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही फिगर आएगा. ठीक है. So this will be our answer. In this way we will calculate other sums also. Tomorrow we will go for another questions. Thank you.